बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum and good morning to all students. Today we start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Welcome once again, welcome to all students in this video classes. This is your English literature period, and this is the first video class. And in this video class we will study the second semester content. The content which we had studied in the physical classes as well as in online classes. The purpose of making this video classes is to revise all the stuff of the second semester content, second semester midterm content as well as second semester final term content. So let's begin with our first story. Today we will review the reader portion, and in the first two stories, A Kind Old Mariner. A Kind Old Mariner is the story which we had studied in the second semester midterm content, and Two Men of Honor. We will also review this story, and this is the story which we had studied in the second semester final term content. Okay, the first story. Let's review this story. Students, this story is given on your book page 1 to page 6. In your book page, page 1 to 6, and I'm not going to give the explanation paragraph wise of the whole story. I will just discuss the plot of the story. I will just give you the explanation about the characters of the story. So for this first we will discuss about the characters of the story. Who are the main characters of this story? The first character is Old Mariner, whose name is Peter. Peter was his name. This is the first character in the story. Mariner is a sailor. Who's mariner? The meaning of this word mariner is a sailor, a person who went to the sea voyages. Okay. And the second character is the girl, a little girl who was about 11 years of age. So these are the two main characters in the story. Okay, let's discuss the main points of the story. This is the story about a sailor whose name is Peter. He went to sea voyages in his young life. Now he is too old to go anywhere. So he has built a small cottage far from the village and lives alone. तो ये जो स्टोरी है वो सेलर के बारे में है, जो कि जिसने अपनी पूरी यंग लाइफ को स्पेंड किया था, सी वॉयजेस पे बहुत गया था वो, और अब क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुका है तो अब वो जो है उसने अपने स्मॉल लिटिल कॉटेज में, जो कि उसके
जो है वो विलेज से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे ये रहता है, अकेले अपने कॉटेज में रहता है. कॉटेज इज अ 1 story house. The mariner's wife and daughter has died because of a deadly fever. This made him sad and silent. इसके अलावा जो स्टोरी के अंदर जो इसकी स्टोरी के अंदर जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो वाइफ और डॉटर के बारे में बताया गया, वो ये कि जो मैरिनर की जो वाइफ और डॉटर थी, वो कुछ उनके विलेज में इस तरह का फीवर आया था और उस वायरल फीवर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. और इस वजह से उनकी डेथ के बाद जो मैरिनर है वो बहुत सैड और साइलेंट हो जाता है और वो अकेले बिल्कुल दूर, उसका जो है वो घर विलेज से काफ़ी दूर है और वो वहाँ पे अकेले रहता है. द ओल्ड मैरिनर वॉज वेरी टाइडी इन हिज हैबिट्स एंड ही लाइक्स टू कीप हिज हाउस नीट एंड क्लीन. बिकॉज ऑफ सफरिंग पेन्स इन हिज लेग्स द ओल्ड पीटर वॉज अनेबल टू कीप हिज हाउस क्लीन. सो ओल्ड मैरिनर की जो क्वालिटी है इससे बताई गई है कि वो बहुत ही सफाई पसंद है, बहुत ही टाइडी है अपनी हैबिट्स में. उसको पसंद है कि आप उसका जो हाउस है वो बिल्कुल साफ़ रहे, नीट एंड क्लीन रहे. इसके अलावा इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो उसके पैरों में काफ़ी पेन रहता है और उसकी वजह से वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो पूरे घर को साफ रख सके. ठीक है. One very stormy night when old Peter was safely sitting in his cozy room, he heard a sound of sobbing outside his cottage. When he opened the door, he discovered a little girl about 11 years of age crouching on his doorstep. She was shivering with fever and drenched in the rain. तो आगे जो स्टोरी का प्लॉट है वो कुछ इस तरह से है कि ये ओल्ड पीटर के बाद, ओल्ड पीटर जब कि एक जो है वो तूफ़ानी रात होती है, तो उसमें जब स्टॉर्म आ गया होता है, वो अपने घर के अंदर अपने आप को सेफ़ और सिक्योर फील कर रहा होता है. ठीक है. और उसको इस बात का भी ख्याल होता है कि बाहर जो इस वक्त जो लोग हैं इस हार्श वेदर को फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं. अचानक से उसको अपने घर के बाहर एक साउंड आती है, साउंड की आवाज़ आती है कि कुछ कोई है बाहर, कोई पर्सन है जो कि बाहर हिचकियों से सॉबिंग कर रहा है, मतलब हिचकियों से रो रहा है. ठीक है. जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पे एक गर्ल है. शी वॉज क्राउचिंग ऑन हिज डोर स्टेप और उसके दरवाजे के आगे जो है वो बैठ के रो रही होती है. और ना सिर्फ वो रो रही होती है बल्कि शी वॉज ऑल्सो शिवरिंग विद फीवर एंड ड्रेंच इन द रेन. मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो कपकपा रही होती है और उसका जो ड्रेस है वो बारिश की वजह से पूरा भीग चुका होता है. So the girl introduced herself as an orphan. She was working with a showman, her master, but due to her small age, she was sent away from her job. फिर उसके बाद गर्ल अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है उसके सामने कि वो कौन है. वो एक ऑर्फन गर्ल है. ऑर्फन मीन्स कि वो उसके ना ही कोई मदर है, नहीं कोई पेरेंट है, उसके कोई जो है वो पेरेंट्स नहीं है. इसकी वजह से उसके पास कोई घर भी नहीं है जहाँ पे वो रह सके. और वो एक अपने जहाँ वो काम करती है उसके मास्टर ने उसको शेल्टर दिया हुआ था, रहने के लिए भी, ये काम भी उसको दिया हुआ था. लेकिन क्योंकि वो गर्ल बहुत ज़्यादा यंग है और उसके ऊपर बहुत बर्डन है काम का और वो उससे काम नहीं हो पाते, इस वजह से उसके मास्टर ने उसको जॉब से किक आउट कर दिया, उसको निकाल दिया. ठीक है. आफ्टर लिसनिंग द सैड स्टोरी ऑफ अ गर्ल, द ओल्ड मैरिनर डिसाइडेड टू लेट द गर्ल इन कॉटेज बिकॉज शी वॉज हेल्पलेस एंड ही फेल्ट दैट शी वॉज लाइक हिज ओन गर्ल. ही थॉट इट वुड बी क्रूल टू लीव हर आउटसाइड. इसकी सैड स्टोरी सुनने के बाद ओल्ड मैन डिसाइड करता है कि क्यों ना इस गर्ल की, इस हेल्पलेस गर्ल की हेल्प की जाए. और इस तरह से वो उसको अपने घर पे जो है वो रहने की परमिशन दे देता है, अलाउ कर देता है कि तुम घर पे इस स्टॉर्मी नाइट में तुम कहाँ जाओगी. उसको उसका ख्याल आता है और उसको लगता है कि उसकी अपनी डॉटर की तरह ही है और वो उसको अपनी डॉटर का एहसास करके जो है वो उसको अपने घर पे रहने की प्लेस दे देता है. ठीक है. ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग द गर्ल क्लीन द हाउस and put the things in order. Peter got happy by the girl's attitude and he offered the little girl the job of a housekeeper. After passing 1 month, उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो जो गर्ल है वो जो है वो क्या करती है, पूरे घर को साफ करती है, हर चीज़ को ऑर्डर में करके रख देती है. तो ये चीज़ जो है गर्ल का ये एटीट्यूड कि वो उस घर को पूरा साफ सफाई करके रख देती है, तो ये चीज़ पीटर को उसकी गर्ल की बहुत अच्छी लगती है और वो क्या करता है, उसको अप्रिशिएट करता है. और फिर जो है वो उसको अपने घर पे परमानेंट हाउस कीपिंग की जॉब ऑफर करता है ताकि उस गर्ल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, जो उसको जो है वो कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से वो परेशान है उसके. तो उसको जो है वो अपने घर पे जो है वो जॉब ऑफर करता है हाउस कीपिंग की. After passing 1 month, old Peter offered the girl payment for her work as a housekeeper. The girl refused to accept the payment for her work. She said that she would not take the money from a person who saved her from hunger and cold. तो वो जो गर्ल है जब पूरा 1 मंथ गुजरने के बाद उसको ओल्ड पीटर, जो पीटर है वो उसको जब उसको पेमेंट देता है उसके काम की,
तो वो जो है उस पेमेंट को लेने से मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है, और वो कहती है कि मैं ऐसे पर्सन से पेमेंट लेना नहीं चाहूँगी जिसने मुझे जो है वो एक स्टॉर्मी नाइट से सेव किया था और मुझ पर जो है वो फेवर की थी, एहसान किया था, बल्कि जो है वो और बल्कि मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखा गया इस घर में। तो मैं जो है वो यहाँ पे इस घर को अपना समझ के जो है वो यहाँ पे रहना चाहूँगी, और मैं जो है वो ऐसे पर्सन से पैसे पेमेंट नहीं लूँगी। जैसे उसने मेरे साथ फेवर की, मैं भी उसको फेवर के तौर पे यहाँ पे जो है वो रहना चाहूँगी। तो ये इस स्टोरी का मोरल है, दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ओल्ड पीटर ने स्टॉर्मी नाइट में उस गर्ल की हेल्प की जबकि वो बिल्कुल हेल्पलेस थी, और उसने उसके साथ क्रूल बिहेवियर नहीं किया जैसे कि उसके मास्टर ने किया था, उसके साथ उसको निकाल दिया था और उसको छोड़ गया था। ठीक है, इस तरह से जब ओल्ड पीटर ने उसके साथ जो है वो मर्सीफुल बिहेवियर किया, तो इस तरह से उस गर्ल ने भी जो है वो उस ओल्ड पीटर को जो है वो अपने जो है वो उसके साथ जो है वो उसके घर पे इस तरह से रही कि उसके घर के सारे काम भी मैनेज किए और वहाँ पे अच्छे एटीट्यूड के साथ रही। और फिर जब उसने पेमेंट दी तो उसने उसको लेने से भी रिफ्यूज़ कर दिया, और उसने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए प्लेस मिल गई है और मैं जो है यहाँ पे बहुत खुश हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो दोनों ने क्या कि एक दूसरे की हेल्प की है, और इस तरह से जो ओल्ड पीटर है वो भी जो है अब वो अकेला नहीं रह गया, और दोनों के बीच में एज अ फादर एंड डॉटर रिलेशन हो गया, और वो दोनों जो है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। ये इस स्टोरी का मोरल था। आपके पास जो है वो आपकी कॉपीज़ के अंदर सारा वर्क इसका प्रेजेंट है। ऑल द वर्क विच इज़ रिलेटेड टू द स्टोरी, द वर्ड्स मीनिंग, the questions of the story, and the interesting facts, character sketch of Peter, and the summary. Okay, I think I should read the words meaning. What is the meaning of mariner? Mariner means a sailor. Cottage is a one story house. Desolate means lifeless, hopeless. Mourn means sorrow, grief. Seldom, rarely. Voyage is journey by ship. Waxed means frustrate. Cozy means comfortable. Shutter are the protective panels over window. Hearth is a fireplace. And shuddered, shaking with fear. Sobbing is the sound, crying sound of crying noisily. Okay, rumbling is the sound of wheels. Crouching is called sitting on a position close to the ground. Shivered means shaking with cold. Drenched means completely wet. Faded means less bright, dim. Gruff means rough. Brimming means fill up. Provisions are called the items of goods. Timidly is called the coward person. Cowardly behavior is called timidly. Cruel is unkind. Bustling is called the full of energy. Gleaming is shining, glowing. Tenderness is kindness. So these are all the difficult word spinning of the story. What are the questions of the story? What was the sailor's name? The sailor's name was Peter. Where did he live? Where did the sailor live? He lived alone in his little couch. In his little cottage. What did he do on that stormy night? Old Peter closed his shutters, light the lamp, and looked round his cozy room. Describe the girl's appearance. Girl's की appearance कैसी थी? A little girl was about 11 years of age. Her clothes were faded and torn. She was very pale and tired. जी girl की appearance है कि वो उसकी age 11 years की है और उसके जो clothes हैं वो faded और torn थे, मतलब वो फट चुके थे और काफ़ी पुराने लग रहे थे, और जिसका जो face color था वो pale हो गया था और वो काफ़ी थकी हुई tired लग रही थी. What did the old man say when he heard her sad story? Old man ने क्या कहा उसकी स्टोरी सुनने के बाद? The old man allowed her to stay in a cottage until next morning. और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद उसने उससे इंस्पायर होकर के उसको परमानेंटली अपने घर पे एज अ हाउस कीपर रख लिया था. What offer did the old mariner make to her at the end of the month? Old Peter offered her payment for her work as a housekeeper. ओल्ड कीपर ने एक मंथ के बाद उसको एंड पे क्या दिया था? उसको पेमेंट ऑफर की थी उसके हाउस कीपर की, उसकी जॉब की. ओके, व्हाट द विलेज पीपल से अबाउट ओल्ड पीटर? विलेज के पीपल्स जो लोग थे विलेज के, उन्होंने ओल्ड पीटर को काफ़ी जो है वो ऑब्जर्व किया हुआ था उसकी वाइफ की और डॉटर की डेथ के बाद. तो वो बिल्कुल सैड और साइलेंट हो गया था. जब गर्ल आई तो गर्ल बहुत ही लाइवली थी और बहुत ही हैप्पी थी,
तो उसके साथ रह करके, उसके साथ जो है बातें कर करके ओल्ड पीटर जो है वो कैसा हो गया था, बहुत ही चेयरफुल पर्सन बन गया था और फ्रेंडली नेचर उसकी दोबारा से हो गई थी। उस गर्ल की वजह से, उस गर्ल के रहने की वजह से उस घर में काफ़ी जो है वो उसका जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया था। जो उसके घर का एक इन्वायरमेंट था, सैड था, साइलेंट था, तो वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तो लोगों ने क्या कहा था, पीटर हैड बिकम सो फ्रेंडली एंड चेयरफुल सिंस द लिटिल गर्ल केम टू स्टे विद हिम। पीटर जो है वो क्या बन गया है, काफ़ी चेंज हो गया है, चेयरफुल और फ्रेंडली बन गया है जब से वो जो लिटिल गर्ल उसके साथ रहने की नहीं आई है। तो ये उसके बिहेवियर में चेंज आया था। उसके बाद आफ्टर दिस वी हैव द कैरेक्टर स्केच ऑफ पीटर। सो पीटर जो है वो क्या है, एडवेंचरस है। पीटर वॉज एडवेंचरस, he was a helpful person, he was also a friendly person, he was very sad and silent, he was a great storyteller। जो गर्ल है उसको, उसके साथ वो क्या बातें करता है, गर्ल को बहुत इंटरेस्ट था कि वो पीटर से कहानियाँ सुने उसके वॉयजेस से रिलेटेड। तो ये जो सारी स्टोरीज थी कि उसके एडवेंचर से रिलेटेड, कि जब वो अपनी यंग लाइफ में गया वॉयजेस पे, तो इसकी कहानियाँ जो है वो, उसकी स्टोरीज जो है वो उसने उस गर्ल को काफ़ी जो है वो सुनाई थी। सो ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ही वॉज ऑल्सो वेरी टाइडी, ही वॉज वेरी टाइडी इन हिज हैबिट्स। ही वांटेड हिज हाउस नीट एंड he wanted to keep his house neat and clean, so he was tidy, he was a tidy person. He was also cheerful, he was also kindful and helpful. Okay, then we have the summary of the story. The summary is, old Peter was a sailor and he voyaged to many foreign countries. He lived alone in his little cottage. Old Peter एक sailor है और उसने बहुत सारे foreign countries के voyage पे गया। वो अपने कॉटेज में वो अकेले रहता है। द मेरिनर्स वाइफ एंड डॉटर हैड डाइड बिकॉज ऑफ अ डेडली फीवर। जबकि मेरिनर की जो वाइफ और डॉटर है वो उनकी डेथ हो चुकी है और एक डेडली फीवर की वजह से। दिस मेड हिम सैड एंड साइलेंट। इसी वजह से जो है वो ओल्ड पीटर क्या हो गया, सैड और साइलेंट हो गया है। ऑन अ स्टॉर्मी नाइट ओल्ड पीटर डिस्कवर्ड अ लिटिल गर्ल अबाउट 11 years of age. She was shivering with cold and was drenched in the rain. एक स्टॉर्मी नाइट को ओल्ड पीटर ने क्या डिस्कवर्ड किया, अपने घर के बाहर एक 11 years की एज की गर्ल थी। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड एंड वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। वो काफ़ी कपकपा रही थी, उसके जो बारिश में भी भीग चुकी थी वो। द गर्ल वॉज ऑर्फन एंड शी हैड नो प्लेस टू स्टे। वो गर्ल क्योंकि ऑर्फन थी और उसके पास कोई जगह नहीं थी स्टे करने के लिए। द ओल्ड मैरिनर डिसाइडेड टू हेल्प हर एंड अलाउड हर टू स्टे इन कॉटेज। ओल्ड मैरिनर ने उसकी हेल्प की और उसको अपने कॉटेज में अलाउ कर दिया स्टे करने के लिए। ही ऑफर्ड द लिटिल गर्ल द जॉब ऑफ हाउसकीपर। और फिर उसके बाद उसने उसको अपने घर पे हाउसकीपर की जॉब भी ऑफर की। तो इस तरह से आपने पूरे जो है वो, आई हैव गिवन यू द रिव्यू ऑफ द फर्स्ट स्टोरी, अ काइंड ओल्ड मैरिनर. This is the story of the midterm. Then next we have the second story, Two Men of Honor, and this is the story of the second semester final term content. Okay, so this is the story we had studied in the online classes. This is the story which we had not studied in the physical classes. So I will give you the detailed explanation. I will give you the paragraph-wise explanation of this story. First, we will discuss the main character of the story. The first character of the story is Ibn Aden. Ibn Aden is the first character of the story. He was the leader of Moors. Who are Moors? Moors जो है वो कौन है इस story के अंदर? Moors are the Arab peoples. Moors are the Muslims and they are the Arab peoples. This is a group of nation who are called Moors. Moors जो है वो क्या है? इन Arab peoples का name है, ठीक है? And they have the kingdom. They have the kingdom and the kingdom name is Granada. मतलब जो Moors है उनकी जो kingdom है उसका name है Granada. और यहाँ पे स्पेन में, दिस इज द स्टोरी विच टुक प्लेस इन द कंट्री स्पेन. स्पेन में ये स्टोरी बनाई गई है. तो स्पेन में इनकी किंगडम थी इन मोर्स की, उसका नेम था ग्रेनेडा. द किंगडम ऑफ ग्रेनेडा बिलोंग्स टू दीज मोर्स. और ये हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्टोरी का, द फर्स्ट कैरेक्टर हुज नेम इज इब्न एडन, दिस ही वाज द लीडर ऑफ मोर्स. ये मोर्स के लीडर थे. एंड what we see in the story that the first character in the beginning of the story, he was fleeing off. He was running from his enemies. He was running from the troop of Spanish soldiers. Spanish army जो है वो उससे ये भाग रहा होता है फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है. Then
देन वी सी दैट जो उसका इंट्रोडक्शन है हमारे पास वो ये कि ये जो है वो स्पेनिश आर्मी से भाग रहा है, बिकॉज ये जो है वो वापस आया, ही रिटर्न बैक टू टेक द रिवेंज, और ये रिवेंज लेने के लिए वापस आया है. ही वांटेड टू टेक द रिवेंज फ्रॉम डॉन इनिगो. डॉन इनिगो इज नाउ द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. ही वाज द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ये जो डॉन इनिगो है ये उस जिस टाउन में ये स्टोरी बनी है, द टाउन इन विच द स्टोरी टुक प्लेस इज इन बिटवीन द टाउन ऑफ हुएल्वा एंड सेविल. ये जो दो टाउन है इसमें हुएल्वा और सेविल, इन टाउन्स के बीच पे ये जो है स्टोरी फीचर्ड हुई है. और इन्हीं दो टाउन्स के जो डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर हैं वो कौन है? डॉन इनिगो. और ये डॉन इनिगो इज द ग्रेट एनिमी. डॉन इनिगो एंड इब्न एडन बोथ आर द ग्रेट एनिमीज ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दुश्मन है, एनिमीज हैं. डॉन इनिगो जो है वो अब क्या है? उन दो सिटीज का गवर्नर है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है. और उसी ने ये ऑर्डर्स पास आउट किए हैं कि वो क्या किया जाए, स्पेनिश आर्मी क्या करे, जो सोल्जर्स जो क्या करें, वो जो है वो क्या करें, किसके पीछे जाएं? इब्न एडन को कैप्चर करें, उसको जो है वो पकड़ के लेकर के आए, ठीक है. ही ऑल्सो सेट अ प्राइस ऑन दी इब्न एडन्स हेड. मतलब उसने जो है वो क्या किया हुआ है, उसने जो है वो एक रिवॉर्ड भी सेट किया हुआ है कि जो कोई भी पर्सन, जो कोई भी आर्मी के लोग जो है वो उनका ग्रुप जो है वो लेकर के आएगा इब्न एडन को, तो क्या किया जाएगा? उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा फॉर कैप्चरिंग इब्न एडन इन फ्रंट ऑफ डॉन इनिगो. तो क्या दिया जाएगा? उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है. इस तरह से ये स्टोरी का प्लॉट है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. स्टोरी में आपको बहुत क्विकली जो है वो पूरी स्टोरी में आपको रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगी एंड फिर उसका वर्क हम डिस्कस करेंगे. Swiftly fleeing from his enemies, a horseman galloped along the road which stretched between the town of Seville and the port of Huelva in Spain. Behind him rang the village bells, sounding the alarm of his presence in the neighborhood. A price was on his head, for he was none other than Ibn Adnan, a leader of Moors who had been driven out of the country the previous year. So see your book page 84. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि ये जो हॉर्समैन है वो कौन है? इब्न एडन है, ठीक है. ही वॉज द लीडर ऑफ मोर्स. और वो क्या कर रहा है? जो दो टाउन्स हैं, जो टाउन ऑफ हुएल्वा है और टाउन ऑफ सेविल है, इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है? अपने हॉर्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है. और ये ना सिर्फ जा रहा है बल्कि ये भाग रहा है अपने एनिमीज के, जो इनके पीछे जो सोल्जर्स हैं उनसे ये जो है वो भाग रहा है. और ये भी बताया गया है कि इसके लिए जो है वो इसको कैप्चर करने के लिए अ प्राइज वॉज ऑन हिज हेड. मतलब उसके जो है सर के ऊपर जो है वो एक इसके सर को, इसको खुद को जो है वो कैप्चर करके लाने के लिए क्या है? प्राइस सेट है, रिवॉर्ड सेट है, ठीक है. ये फ्रेज है, अ प्राइस वॉज ऑन हिज हेड मीन्स द मनी हैज बीन ऑफर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर कैप्चरिंग इब्न एडन. एंड ठीक है, द लास्ट ईयर ही वॉज किक्ड ऑफ फ्रॉम द कंट्री. मतलब लास्ट ईयर इसको इस कंट्री से निकाल दिया गया था, इसको यहाँ से इस जगह से निकाल दिया गया था. और अब जो है ये वापस आया है. He had returned for the purpose of raising a rebellion of his fellow Moors, many of whom still remained in this part of Spain. The discovery of his presence by Don Inigo, the governor of the district, had raised his plans, and he was fleeing from a troop of Spanish soldiers. अब जो है वो इसका पर्पस है कि क्या करे? यहाँ पे आकर के अपना रिवेंज ले, ठीक है. जो इसके पीपल्स बाकी बच गए हैं मोर्स, अभी भी कुछ स्पेन के अंदर, मतलब इनकी किंगडम को जो है वो क्या कर लिया गया? इसको ऑक्यूपाई कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया, ठीक है. जो बाकी के जो मोर्स जो यहाँ पे रह गए थे उनको यहाँ पे उनको वहाँ पे जो है वो स्लेव बना लिया गया. उनको वहाँ पे उनको कैप्चर करके जो है वो मतलब जो है वो उनको कैद कर लिया गया, उनको अपना गुलाम बना लिया गया. और ये जो इब्न एडन के साथ जो कुछ लोग थे वो कुछ मोर्स निकल गए थे. अब इब्न एडन की उसकी क्या पर्पस है यहाँ पे आने का? कि वो उन मोर्स को फ्री करवाए या तो फिर जो है वो इस पूरी किंगडम को दोबारा रेस्टोर करे, द किंगडम ऑफ ग्रेनेडा, ठीक है. और जो डॉन इनिगो है जो है वो इसी ने क्या किया था लास्ट ईयर? इसके जो है वो प्लान्स को जो है वो फेल कर दिया था. इसके प्लान्स को जो है वो इसका जो प्लान था कि यहाँ पे आकर के अपने लोगों के लिए जो है वो क्या करे? अपने लोगों को फ्री करवाए. तो जो है वो लास्ट ईयर इसको निकाल दिया गया था. और अब जो है वो इसने फिर लास्ट ईयर जाते जाते क्या अपने आप से क्या इसने वो किए थे? कुछ इसने प्रॉमिसेस किए थे. एज ही रोड अलोंग द रोड टू हिमसेल्फ, माई प्लान्स हैव फेल्ड दिस टाइम, बट आई शैल रिटर्न अगेन एंड रेस्टोर द किंगडम ऑफ ग्रैंडा टू द मोर्स.
I shall then have my revenge on the proud Don Inigo. Through the watchfulness of his spies, I have been betrayed, but he shall suffer for it. Bold and brave though he be, my trusty sword shall not rest in its sheath until he is dead. It may be 1 year, it may be 2, before I am ready again, but I shall not fail next time. तो जब वो रोड से जा रहा होता है तो वो अपने आप से कुछ वाउस जो है वो क्या करता है, अपने कुछ वाउस जो है वो कुछ जो है वो प्रॉमिसेस करता है, ठीक है। क्या करता है कि वो मैं जो है क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा यहाँ पर आऊँगा, मैं अपना रिवेंज लूँगा, और इस दफ़ा तो जो है वो मैं जा रहा हूँ। डॉन इनिगो जो है वो बहुत अलर्ट पर्सन है, बहुत एक्टिव है। उसने अपने स्पाइस को, अपने जो जासूस हैं उनको भेज के उनको मेरे पीछे लगा के जो है वो मेरे प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर तो दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा और दोबारा से जो किंगडम ऑफ ग्रैंडा है उसको रेस्टोर करवाऊँगा, बदला लूँगा। तो ये सारे उसने वादे किए हैं कि मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से आऊँगा। और अब जो स्टार्टिंग में हमने देखा ये 1 साल बाद दोबारा से आया है, और इस बारे में जो है वो स्पेनिश जो गवर्नमेंट है उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन है, और उन्होंने जो है वो गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो दो टाउन्स हैं, हुएल्वा और सेवल, इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो डॉन इनिगो हैं, इन्होंने क्या दिए हुए ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि पीछे लगाया हुआ है स्पेनिश आर्मी को कि इब्न एडन को सर्च करे, ठीक है। ओके, Thus he dreamed as the shades of evening were closing around him. Suddenly he noticed that the horse showed. अब आगे पूरा डिस्क्रिप्शन है डिटेल के अंदर जो है वो क्या है इसके अंदर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं उसको यहाँ पे कि जो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर है इब्न एडन, ये जब अपने हॉर्स पे से जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इवनिंग हो जाती है और इसका जो हॉर्स है वो बहुत तेजी से राइडिंग कर रहा होता है ना, तो इसका जो हॉर्स है वो जो है वो थकने लगता है, उसको वियर्ड होने वियरीनेस मतलब वो थक जाता है काफ़ी। तो वो जो है वो उसको रेस्ट करवाने के लिए एक फॉरेस्ट की तरफ जो है ये ले जाता है, कौन, इब्न एडन, कि कुछ इवनिंग का कुछ टाइम जो है वो रेस्ट किया जाए, उसके बाद फिर आगे निकला जाए, आगे जाया जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इतनी देर में क्या होता है कि ये ऑब्जर्व करता है कि कुछ वॉइसेस आ रही हैं कुछ दूर से, जबकि ये लेट चुका है और उसका जो हॉर्स भी जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो इसने कुछ टाइम बाद आवाज़ें सुनी और वो जो है वो कुछ दूर से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो रुका नहीं जाता, फ़ौरन उस आवाज़ को, उस वॉइस को फॉलो करते हुए जाता है। तो देखता है कि एक बॉय है, एक यंग सा बॉय है, और उसके साथ कोई वो है अटेंडेंट है उसका, और उसको इंजर्ड किया हुआ है। उस बॉय को जो है वो ट्री से उसके हाथ बांधे हुए हैं, और उसका जो अटेंडेंट है उसको जो है वो, जो कि उसको रेस्क्यू करवाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके साथ फाइटिंग करके उसको इंजर्ड कर दिया गया। तो इस तरह से जो है वो इब्न एडन कहता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए और मुझे रेस्क्यू करवाना चाहिए इस पर्सन को, और जो बॉय है उसको भी, ठीक है। तो ये इनकी हेल्प करता है, उनको रेस्क्यू करवाता है। इसके बाद जो है वो जब वो जो कुछ गुंडे होते हैं, कुछ थीव्स होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। उनसे फाइटिंग करने के बाद जो है वो इब्न एडन क्या करता है, वो इन दोनों लोगों को रेस्क्यू करवा लेता है। इसके बाद जो है वो जो बॉय है वो थैंकफुल होता है और वो रिक्वेस्ट करता है इब्न एडन से कि प्लीज़ मेरे घर, अपने घर उसको इनवाइट करता है कि मेरे घर आइए, जो मेरे फादर हैं वो आपसे थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि मैं जो है वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर हैं, उनके लिए मेरी जान का बचना बहुत बड़ी बात होगी, और इसलिए वो आपके जो है वो मिलना पसंद करेंगे और आप मेरे साथ चलिए। उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, इब्न एडन कहता है कि मैं एक अरब पर्सन हूँ और मैं एक हंटेड मैन हूँ, और जो है वो ये बात तुम्हारे फादर को पसंद नहीं आएगी कि मैंने जो है वो इस तरह से किया। उनको जो है वो मैं तो पहले ही जो है वो, हम क्या हैं, हम अरब पीपल्स उनकी नज़र में कौन है, हम तो वैसे ही स्लेव हैं और हमारा कोई उनकी नज़र में कोई इमेज नहीं है। तो लेकिन बॉय कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे रेस्क्यू करवाया, और प्लीज़ मेरे फादर जो है वो मैं चाहता हूँ आप उनसे जाके मिलें, और मैं उनको बताऊँगा कि मैं जो है वो आज बिल्कुल ख़तरे में था और शायद मैं आज बच भी नहीं पाता, और आपने मुझे इतनी फेवर की और मुझे सेव कर लिया यहाँ से। तो उसके रिक्वेस्ट करने पर जो इब्न एडन है वो उसके साथ जाता है, और उसके बाद जो है वो जब वो उसके घर पहुंचता है, उस महल में पहुंचता है, वो देखता है कि वो वाकई एक बहुत बड़ा सा महल है, कैसल है, और उस कैसल में जैसे ही वो एंटर होते हैं तो वहाँ पे लाइट चली जाती है। तो जो है वो जो उस यंग बॉय के जो फादर होते हैं, ठीक है, वो उससे जो है वो बातचीत होती है, लेकिन जो है वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिला चुके होते हैं, और वो
जो फादर हैं या उस यंग बॉय के, वो उसको थैंक्स भी कर चुके होते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है तो वो देखते हैं कि ये जो पर्सन सामने खड़ा हुआ है जिसने मेरे बेटे को रेस्क्यू करवाया, ये और कोई नहीं है बल्कि मेरे कोई एनिमी, मेरे एक ग्रेटेस्ट एनिमीज में से जो है वो पर्सन है। और ये कौन है, इब्न एडन है। और इस तरह से जो सेम इंप्रेशन, जो सरप्राइज होता है, वो इब्न एडन भी शॉक में आता है देख के सामने कि वो कौन है, वो डॉन इनीगो है, जिससे वो पूरा टाइम जो है वो आज जो है क्या कर रहा था, उससे अपने आप को बचा रहा था, भाग रहा था इसके सोल्जर से। ठीक है, तो इस तरह से वो दोनों दूसरे को देख के जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद फिर लेकिन डॉन इनीगो के लिए, डॉन इनीगो के लिए जो है वो ये बात जो है वो काफ़ी वैल्यूबल होती है कि इसके एनिमी ही सही, इब्न एडन इसका एनिमी ही सही, लेकिन इसने क्या किया, इसके साथ फेवर की है, इसके बच्चे को, इसके जो बॉय है, इसके बेटे को सेव करवा करके, रेस्क्यू करवा करके। तो वो इस चीज़ का फेवर इस तरह उसको रिटर्न करता है कि वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आर्मी का जो इनका ग्रुप जो है वो सर्च कर रहा है इब्न एडन को, उनको ऑर्डर देता है कि इस एरिया के अंदर अब तक क्या रिपोर्ट है। पहले तो जो आते हैं सोल्जर्स, उससे पहले रिपोर्ट जो है वो अपडेट पूछता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने सब जगह सर्च किया, हमें कोई भी ऐसे वारंट्स नहीं मिले कि यहाँ पे इब्न एडन किसी जगह पर हो। तो वो उनको ऑर्डर देता है कि हाँ ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पे नहीं है, तुम जाओ, तुम लोग जो है वो यहाँ पे आप सर्च नहीं करो उसको, किसी और जगह जो है वो जाओ, दोबारा से जो है वो ऑर्डर्स लो और किसी और जगह उसको सर्च करो। ठीक है, इस तरह से पहले तो वो इब्न एडन को अपने डिस्ट्रिक्ट में उसकी जो सर्च है उसको स्टॉप करवा देता है। और उसके बाद जो है वो फिर आफ्टर दिस इब्न एडन को जो है अपने घर में ऐसी जगह पे, ऐसे जो है वो बेसमेंट में उसको ले जाता है जहाँ पे वो उसको स्टे करवाता है पूरी रात के लिए, उसको वहाँ पे रोकता है। ठीक है, उसको जो है वो उसको अप्रिशिएट करता है उसको कि तुमने मेरे बेटे के साथ जो है वो क्या किया, उसको फेवर किया, उसको रेस्क्यू किया, और इसके बदले जो है मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ से सेफली निकल जाओ स्पेन से। तुम यहाँ पे तुम्हें जो है वो, जो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, तुम्हें कैद करना चाहते हैं, इसके लिए जो है वो क्या करता है, उसको फेवर करता है और उसको बिल्कुल एक जो है वो, उसके बाद उसको जो है वो पूरे जो है वो बिल्कुल सबसे छुपा के जो है वो रात के बाद सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो कैरेज आती है और उसके जो सवारी आती है उस पर बिल्कुल जो है वो खामोशी के साथ हाइड करके जो है उसको उसकी हेल्प करता है और उसको वहाँ से स्पेन से निकाल देता है। ठीक है, इस तरह से जो डॉन इनीगो है, ये जो स्टोरी का नेम है टू मैन ऑफ ऑनर, मीन्स वो जो दोनों पर्सन्स हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर हु वाज इब्न एडन एंड द सेकंड कैरेक्टर डॉन इनीगो, बोथ आर द ऑनरेबल पर्सन्स। मतलब वो दोनों ही एक दूसरे के लिए जो स्टार्टिंग में एनिमीज होते हैं, बिटर एनिमीज होते हैं, वो आखिर में क्या बन जाते हैं, द बोथ बिकेम द रिस्पेक्टफुल पर्सन्स, रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज फॉर ईच अदर। उनकी दुश्मनी आपस में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो वाउज उसने किए थे अपने आप से, जो प्रॉमिसेस किए थे इब्न एडन ने कि मैं जाकर के क्या करूँगा, बदला लूँगा और रिवेंज दूंगा, और तो इस तरह से जो है वो ये सारे अपने जो है वो सारी इरादों को जो है वो उसके बाद फिर उसका कोई ऐसा इरादा नहीं होता कि वो दोबारा से कोई रिवेंज ले। इन सब बातों को भुला करके जो है वो इब्न एडन वहाँ से चला जाता है स्पेन से, और डॉन इनीगो भी जो है वो अब जो है वो इस तरह से अरब पीपल्स को अपना जो है वो एनिमी नहीं समझता। ठीक है, और इस तरह से उसने उस मोर के साथ जो उनका जो लीडर है इब्न एडन, उसके साथ भी क्या किया, उसको नहीं पकड़वाया, उसको भी खामोशी से अपने स्पेन से निकाल दिया। ठीक है, तो ये इस स्टोरी का मोरल है कि दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया, एक एंड में, स्टोरी के एंड में वो एक दूसरे से जो एनिमीज थे, अपनी जो दुश्मनी उसको ख़त्म कर दी और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने लगे। ये इस स्टोरी का मोरल है। ठीक है, इस स्टोरी को डिटेल में स्टूडेंट्स यू विल स्टडी द होल स्टोरी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, और इसके बाद इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू स्पेन एंड स्पेनियर्स, स्पेन और स्पेन के लोगों के बारे में। स्पेनियर्स आर कॉल्ड द पीपल ऑफ स्पेन। स्पेन और स्पेन के लोगों के क्या कस्टम्स हैं, क्या कल्चर है वहाँ पे, इस बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये सारा जो वर्क है इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ आपके कंटेंट में जो गिवन है। कंटेंट सॉल्यूशन में इसका जो है वो आपके पास वर्क गया है वीक नंबर 8 में। वीक नंबर 8 में स्टडी हुई स्टोरी ऑनलाइन क्लास में, तो वीक नंबर 8 में इसका सॉल्यूशन गया है इस स्टोरी का। फर्स्ट वी हैव द वर्ड्स मीनिंग ऑफ द स्टोरी। फ्लीइंग मीन्स रन ऑफ, गैलप
गैलप वो मतलब जो हॉर्स बहुत ही स्पीडली भाग रहा है, उसको जो है उसके दौड़ने को कहते हैं गैलप, स्पीडली रश। रेस्ड मीन्स वो जो मीन्स डिस्ट्रॉय, जो प्लान्स हैं उसको जो है वो क्या किया था डॉन इनीगो ने, जो इब्न एडम के प्लान्स थे उसको रेस किया था, मीन्स डिस्ट्रॉय किया था। बीट्रेड मीन्स चीटेड, ठीक है, जो इब्न एडम कहता है कि मेरे जो मुझे चीट किया गया, मुझे बीट्रेड किया गया। वेरीनेस इज कॉल्ड टायर्डनेस, जो हॉर्स है, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ ये वर्ड डिस्ग्रेस इज कॉल्ड द डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब किसी के इंसल्ट करना, उसको रिस्पेक्ट नहीं देना। परजुअर्स आर द ट्रेपर्स, परजुअर्स वो लोग जो कि ट्रैप कर रहे थे, जो इब्न एडम को सर्च कर रहे थे, ठीक है, जो ट्रूप ऑफ आर्मी था वो, ठीक है, दे आर द परजुअर्स। डिस्ट्रेस इज द टॉर्चर एंड पेन, डिस्ट्रेस मीन्स टॉर्चर और पेन। डैश मीन्स मूव ऑन, टैकल मीन्स अटैक, ठीक है, टैकल मीन्स अटैक। ऑनर्ड मीन्स हैव रिस्पेक्ट। एंग्जियस मीन्स वरिड। नॉडेड मीन्स अंडरस्टैंड। स्ले मीन्स किल, मार देना, ठीक है, यही कुछ वर्ड्स मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। द डायलॉग इज गिवन, माई प्लान्स हैव फेल्ड दिस टाइम बट आई शैल रिटर्न अगेन एंड रिस्टोर द किंगडम ऑफ ग्रानेडा टू द मोर्स। मतलब ये जो लाइन है ये किसने कही कि मेरे प्लान्स हैं ये इस दफ़ा ज़रूर फेल हो चुके हैं, बट मैं दोबारा से वापस रिटर्न आऊँगा और जो किंगडम ऑफ ग्रानेडा है उनको मोर्स के लिए ज़रूर जो है वो वापस हासिल करूँगा। So these dialogues from which story these lines have been taken? These lines have been taken from the story which is named Two Men of Honor, ठीक है, स्टोरी का नेम है टू मैन ऑफ ऑनर, जहाँ से डायलॉग्स को जो है वो लिया गया स्टोरी से। Who spoke these lines to whom? These lines have been spoken by Ibn Adnan to himself. ये लाइंस जो है वो इब्न एडन ने खुद अपने आप से ये वादा किया था, तो ये डायलॉग्स उसने खुद अपने आप से कहे थे। What were his plans? His plans were to take his revenge from Don Inigo. उसका जो प्लान था ये था कि वो डॉन इनीगो से क्या ले, रिवेंज ले, ये उसका प्लान था, ठीक है। Who were the Moors? मोर्स कौन से? मोर्स वर द अरब इन्वेडर्स हु सेटल्ड इन स्पेन। मोर्स जो है वो अरब के वो लोग हैं जिन्होंने जो स्पेन को पता किया था, इन्वेड किया था, ठीक है, और वहाँ पे वो लोग फिर सेटल्ड हो गए थे, वहाँ पे ये रहने लगे थे, ठीक है। देन वी हैव द अंडरस्टैंडिंग द फ्रेज, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग। The phrases are given. They looked at each other in dismay. They looked at each other in dismay means they looked at each other in great amazement. मतलब एक दूसरे को कैसे देखा, बहुत ही घबरा करके, बहुत ही सरप्राइज होकर के देखा, ठीक है। I shall have my revenge means I will take my revenge. मैं अपना बदला जरूर लूंगा। A prize was on his head. It means a reward will be given for capturing him. ओके, अ प्राइज वॉज ऑन हिज हेड, इसकी मीनिंग क्या है कि एक जो रिवॉर्ड है वो जो कोई भी उसको लेकर के आएगा, कैप्चर करेगा, उसको वो क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। इट मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। इट मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट मीन्स इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू हैपन, मतलब ये नहीं होना चाहिए हर हाल में, ऐसा जो है वो जो भी इसकी मीनिंग है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी इज Who was Ibn Adnan and why was there a price on his head? Ibn Adnan कौन है? Ibn Adnan was the leader of Moors. There was a price on his head at the order of Don Inigo because he was an Arab and a hunted man. ठीक है, Ibn Adnan लीडर है मोर्स का, और उसके लिए क्या है, डॉन इनिगो के ऑर्डर्स के ऊपर उसके लिए जो है वो क्या है, ऑर्डर्स हैं उसको कि जो कोई भी उसको कैप्चर करेगा उसके लिए रिवॉर्ड है। और वो कौन है? He was an Arab person and he was also a hunted man, ठीक है, वो hunted man भी है और वो एक अरब पर्सन है। What vows did the Moor make when his plans failed? जब मोर्स के प्लान, मतलब वो जो मोर है, जो इब्न एडन है, उसके प्लान जब फेल हो गए तो उसने क्या वाउस किया अपने आप से, क्या प्रोमिस किए? He promised himself that although his plans have failed this time but he will return again and restore the kingdom of Granada to the Moors and he will take his revenge from Don Inigo. उसने तब से ये प्रॉमिस किया था कि अगर उसके प्लान्स इस बार चाहे ज़रूर फेल हो चुके हों, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, दोबारा से आएगा और जो ग्रानेडा है इनकी किंगडम, उसको मोर्स के लिए दोबारा से रिस्टोर करेगा, हासिल करेगा, ठीक है, और अपना रिवेंज डॉन इनिगो से ज़रूर जो है वो बदला लेगा। द नेक्स्ट फ्रेज इज नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did they look at each other in dismay?
क्यों एक दूसरे को वो बिल्कुल सरप्राइज होकर देख रहे थे? दे लुक एट ईच अदर इन डिसमे बिकॉज दे बोथ वर द डेडली एनिमीज ऑफ ईच अदर। इसलिए हैरान हो गए थे, एक दूसरे को इसलिए देख रहे थे हैरान होकर के। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बहुत ही खतरनाक तरीन दुश्मन थे। टू विच कंट्री डिड द मोअर एस्केप? अच्छा, मोअर एंड में किस जगह, किस कंट्री में चला गया था? तो जो ये जो मोअर है, इब्न एडन है, द मोअर एस्केप टू नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका पे वो चला गया था, वहाँ से, स्पेन से। Then we have the questions of interesting facts. Where is Spain? Spain lies at the southwest corner of Europe between the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Spain जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर, यूरोप के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान में, बिटवीन में है। नेम 2 मिनरल्स फाउंड इन स्पेन। स्पेन के 2 मिनरल्स जो कि स्पेन में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? 2 मिनरल्स विच फाउंड इन स्पेन आर द कॉपर एंड आयरन। नेम 4 फ्रूट्स ऑफ स्पेन। These fruits are grapes, oranges, olive and figs. ये fruits के नेम हैं और ये minerals के नेम थे। Then we have the development exercises. यहाँ पे कुछ words हैं, the word की list given है और इनको in blanks में fill up करना है। The words are soul, leg, arm, eye, neck, teeth, head, face, mouth and brow. So ए पार्ट पे जो है वो क्या करना है? द डैश ऑफ अ नीडल। नीडल की क्या होती है? नीडल की क्या होती है? द आई ऑफ अ नीडल। द डैश ऑफ अ सॉ के जो है वो क्या होते हैं? सॉ आरी, उसके जो क्या होते हैं? टीथ होते हैं। द टीथ ऑफ अ सॉ। द डैश ऑफ अ बुट के जो है वो, सॉरी, द डैश ऑफ अ बूट मतलब बूट्स के जो है वो क्या होता है? बूट का सोल होता है। द सोल ऑफ अ बूट। द डैश ऑफ अ टेबल के क्या होते हैं? द लैग ऑफ अ टेबल का जो है वो लैग होता है। द डैश ऑफ अ चेयर के जो है वो क्या होते हैं? द आर्म्स होते हैं उसके, चेयर के। द डैश ऑफ अ टनल का जो है वो क्या होता है? टनल की जो बिल्कुल एक वो ओपन होता है उसका वो एरिया, उसको क्या कहते हैं? उसको कंसिडर करते हैं द माउथ ऑफ अ टनल। द डैश ऑफ अ मैच, जो मैच स्टिक होती है उसके जो ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ अ मैच। द डैश ऑफ अ बॉटल के ऊपर जो उसका जो है वो बॉटल का जो वो जो कवर जिससे करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस कवर के जो नीचे वाला जो एरिया उसको कहते हैं नेक ऑफ अ बॉटल। ठीक है। द डैश ऑफ अ हिल जो है वो, जो हिल के जो ऊपर जो उसका जो इस तरह से जो आउटलाइन आ रही होती है हिल्स की, उसको क्या कहा गया है? द ब्रो ऑफ अ हिल। द डैश ऑफ अ वॉच का जो है वो क्या कहते हैं? उसके ऊपर के उसके पार्ट को द फेस ऑफ अ वॉच। इस तरह से जो है वो हमारे पास ये वर्ड्स है, उनको इसमें फिलअप किया गया। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड अमंग दीज गिवन इन ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में 3 वर्ड्स गिवन है, एक वर्ड को सेलेक्ट करना है। द हॉर्स स्वेटेड, पैडल्ड और गैलप्ड along the road. The right answer is galloped. The ship dashed to Africa. The ship sailed, shouted or strolled. The right answer is sailed. The ship sailed to Africa. The sun dashed in the sky. The sun listened, shone, shivered. The right answer is shone. The sun shone in the sky. The fish dashed towards the bait. The fish whispered, hopped, darted. The fish darted towards the bait. The bird dashed over the waves. The bird shuffled, glided or smiled. The bird glided over the waves. Okay? अच्छा, हमारे पास ये मैंने आपसे कंटेंट को पूरा जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया. I have given the overview of both the stories, A Kind Old Mariner and Two Men of Honor. Firstly, I have briefly discussed the story, the summarized story, the story points of the both stories, and then I have read the content stuff. Now, for your preparation of examination of both the stories, what will you do? I have prepared some questions, some revision questions. आपने उनकी preparation करनी है. उन questions की आपने क्या करनी है? preparation करनी है, उनको practice करना है. Students, ये आपके पास जो है वो focus हो रहा है
यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो. ये द फर्स्ट पेज एंड देन वी हैव these are the revisionary questions of story 1 and ये भी इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, द नेक्स्ट स्टोरी इज टू मैन ऑफ ऑनर और इसका सिर्फ एक ही पेज है. ये क्वेश्चंस हैं. अच्छा, आप लोगों को जो मैंने अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स. ठीक है, इसमें वर्ड्स मीनिंग है, आपके पास एमसीक्यूज भी आपने सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस हैं आपकी स्टोरी से रिलेटेड, आपके पास समरी है और कैरेक्टर स्केच भी है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट स्टोरी 1, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, write down the English meaning of the following words. First word is mariner. Mariner means a sailor. ठीक है, cozy means comfortable. Seldom means rarely. Cottage means one story house. Sobbing means crying noisily. I guess crying noisily. Yes. Wax means frustrate. ठीक है, ये English meaning आते memorize करने हैं. Then you have to solve the MCQs from the given options. The sailor's name was dash. What is the sailor's name? The sailor's name was Mark, Anthony, Peter or Kevin. What was the sailor's correct name? Sailor's correct name was Peter. Okay. The girl introduced herself as in dash who had no place to stay. The girl introduced herself. कैसे उसने अपना को इंट्रोड्यूस करवाया था उस गर्ल ने जिसके पास कोई प्लेस नहीं थी स्टे करने के लिए? क्या थी वो? ऑर्फन थी वो, या वो रिच थी, कोई प्रिंसेस थी, या सिंगल पेरेंट पर्सन थी? ठीक है, द गर्ल वॉज ऑर्फन. राइट आंसर इज ऑर्फन. ओके, वेरी टॉल बिल्डिंग्स आर नोन एज जो बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनकी लिए एक टर्म यूज की जाती है जो कि आपके पास ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से ये एमसीक्यूज आया. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी आपने रीड करना है, स्टडी करना है फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एमसीक्यूज के लिए आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को रीड करना है. पूरी बुक की भी रीडिंग करनी है आपने. जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है स्टोरीज के अलावा आपने उन फैक्ट्स की भी रीडिंग करनी है. तो ये जो एमसीक्यूज है ये आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है फर्स्ट स्टोरी के. ठीक है, हाई टावर्स कहते हैं या फिर ट्रेपीजियम कहते हैं, ऑप्शंस में है, पिरामिड है या स्काई स्क्रेपर्स है. तो राइट आंसर इज वेरी टॉल बिल्डिंग्स आर नोन एज स्काई स्क्रेपर्स. Then you have to answer these questions. What did the old man say when he heard her sad story? Old man ने क्या कहा था जब उस गर्ल की सैड स्टोरी को सुना था उसने? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, याद करना है. Where did he live? Where did the old man live? Old man he lived in his little cottage. ये इसका आंसर है. Describe the girl's appearance. गर्ल की जो appearance है उसको डिस्क्राइब करना है. That the girl was 11 years of age and her dress was faded and torn and she was completely drenched in the rain. इस तरह से जो है वो उसकी appearance है उसको आपने इस क्वेश्चन को भी आपने प्रिपेयर करना है. Write down the summary of a kind old mariner. जो इस स्टोरी की जो समरी आपको करवाई गई है कॉपी में, रिटर्न में, आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मेमोराइज करना है. स्केच द कैरेक्टर ऑफ पीटर. जो कैरेक्टर स्केच है पीटर का वो भी आपने प्रिपेयर करना है. तो ये आपके क्वेश्चन हो गए रिविजन क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट स्टोरी अ काइंड ओल्ड मैरिनर. Then you have to prepare the questions of this story, Two Men of Honor. ठीक है, इसमें आपके पास दोबारा से वर्ड्स मीनिंग है. The words meaning, give the meaning of the following words. The first word raised. Raised meaning is destroy. Fleeing means running off. Gallop means speedily rush. Betrayed
betrayed means cheated, weariness means tiredness, tackled means attack. ठीक है, आपने वर्ड्स मीनिंग को मेमोराइज करना है. आंसर दीज क्वेश्चंस. Who was Ibn Aden and why was there a price on his head? The answer is Ibn Aden was a leader of Moors. There was a price on his head at the order of Don Inigo because he was an Arab and a hunted man. इसका आंसर है to which country did the Moor escape? The Moor escaped to North Africa. ये इसका आंसर है. This is the answer to the second question. Then you have the MCQs. दो MCQs हैं. The horse dash along the road. The horse. Options are twittered, paddled, galloped, hopped. The right answer is the horse galloped along the road. Okay. Dash was the kingdom of, Granada was the kingdom of Dash. Granada जो है वो किसकी kingdom थी? Granada was the kingdom of. Options are Spaniards. Option B non-Arab. C Moors. D none of them. तो जो Granada है, this kingdom was the kingdom of Moors. ये Moors की जो है वो kingdom थी. ठीक है, इसका आंसर है Moors. Then the two questions are from the interesting facts. Name 2 minerals found in Spain and name 4 fruits found in Spain. ये आपने इन सारे questions को prepare करना है अपने एग्जाम के लिए. So let's note down your diary. So student, this is your diary that you have to memorize and revise all the work and revisionary questions of the story A Kind Old Mariner and the second story Two Men of Honor. ठीक है, ये दोनों जो आपकी स्टोरीज हैं रीडर में, आपने इन दोनों का वर्क जिसका आपको याद है आपने उसको रिवाइज करना है और जो आपको नहीं याद है वो आपने मेमोराइज करना है. और जो क्वेश्चंस आपको मैंने रिवीजन में लिखवाए उनको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.